Hello friends, myself Sagar Kalaria. Let us start standard 10, chapter number 1, Euclid's algorithm and real numbers. Weightage of this chapter in board is 4, 2 marks 2 sums. Let's start simple. Euclid's algorithms. What is the Euclid's algorithms? Euclid's algorithm is A is equal to BQ plus R. What is A, what is B, what is Q, what is R? A is called dividend, B is called divisors, Q is called quotient, and R is called remainder. Here, R is always 0 less than equal to R less than equal to B. The value of R is always the greater than 0, and less than B. For example, here 13 divided by 2. So this 13 is called A, or dividend. 2 is called divisors, B divisors. Let us start 13 divided by 2. So here 2 6 are 12. 2 6 are 12. Here 3 subtract 2, here 1, and 1 minus 1 is 0. So B2 is called divisors, 6 is called quotient Q, and this 1 is called R. Here simple division by this method. Here value is called dividend, here value is called divisors, here value is called quotient, and this value is called remainder. Now let us start the 1. R is equal to 1. The always 0 less than 1 less than 2. So here value of R is satisfied this condition. So it is true. Each type division is always true. Here R is always less than equal to R is always less than equal to B. Now let us start some example of GCD. What is GCD? Greatest common divisors. Greatest common divisor you are studying in low standard, but here by Euclid's algorithm find the GCD, LCM. Very simple method. Let us start some examples. Example number 1. Find GCD by using Euclid algorithm. In exam, specify the Euclid's algorithm. Find the GCD by using Euclid algorithm. So here follow this method, otherwise it is wrong. First find GCD of 175 and 112. Find GCD by using all Euclid algorithms 175, 112. Okay. Here first step, select the big value of these two numbers. So here 175 is a big value. So 175 is considering A. A means dividend is equal to small value considering B. B means dividend. B means divisors into plus this. Here we can find B Q and R.
तो 175 divide 1112. The 1112 into 2 is the largest from 175. So here 112 into 1 is equal to 112. Subtract 5 minus 2 3, 7 minus 1 6, 1 minus 1 0, 63. So here 112 into 1. 1 is called cube quotient and 63 is the remainder. Now explain in Hindi. फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इस दोनों वैल्यू में से जो सबसे बड़ी है उसको हम डिविडेंड्स में लेंगे। यहाँ पे 175 और 112 में 175 जो बड़ी है उसमें हम उसको कौन सी जगह पे रखेंगे, ए की जगह पे, डिविडेंड की जगह पे, और 112 को किसकी जगह पे रखेंगे, बी की जगह पे। बी बोले तो डिविजर्स 112। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, क्यू और आर। आर हमारा बी से बड़ा होना नहीं चाहिए। अभी हमने देखा था यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी, 0 से बड़ी होनी चाहिए और बी से कम होनी चाहिए। तो यहाँ 63 122 से कम है। तो सेकेंड स्टेप अब हमें क्या करना है, ये 112 है ना, उसको हम ए की पोजीशन पे ले लेंगे, डिविडेंड की पोजीशन पे, और यहाँ पे 63 को हम किसकी पोजीशन पे लेंगे, डी की पोजीशन पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे वापस 63 डिवाइड बाय 112 डिवाइड बाय 63, 62 इंटू 2 करें, 2 करके देख लो, इंटू 2 करके देख लेते हैं, 6 और 12 तो 126 हो रहा है। तो 112 से तो ये बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। यहाँ पे जो डिवीजन होगा 1 से होगा, तो 63 इंटू 1 तो 63 क्या बचा देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे कट सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का रूल्स कहाँ है, यहाँ पे 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 10 ले रहे हैं, तो क्या हो गया देख लो, 10 12 में से 3 हो जाएगा 9, यहाँ पे हम लेंगे 9 लेंगे, तो यह क्या हो गया देख लो, 112 में से 63 जाएंगे तो कितने बचते वो आपने निकालना है, 12 और 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 0 हो गया, तो 1049 हो गया, 049 हो गया, सॉरी। तो ये हमारा क्या बचा, आर बचा, ये क्या बचा हमारा, ये बचा है क्यू, और ये है हमारा पास बी, और ये है हमारे पास ए। तो यहाँ पे 63 इंटू 1 प्लस 49। वापस रिपीट, कहां तक रिपीट करनी है प्रोसेस, जहां तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक। तो 63 यहाँ पे लेंगे ए की पोजीशन पे, और 49 यहाँ पे लेंगे, इंटू कुछ करेंगे, और यहाँ पे कुछ प्लस में आएगा, देख लो 63 डिवाइड बाय 49, 49 1 जा 49, कितने बचे देखो। तो यहाँ सिंपल आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 63 सब्ट्रैक्ट 49 कितना होता है, तो 69 माइनस 49 कितने होते हैं 14, तो यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे 14 बचा प्लस 14 रिमाइंडर। तब ये 49 लेंगे हम यहाँ पे ए की पोजीशन पे, डिविडेंड की पोजीशन पे, 14 को कहाँ पे लेंगे, डिवीजर की पोजीशन पे, 14 इंटू देखो दिख रहा है 49 है, तो 14 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 42 हो रहा है, 42 प्लस 7, ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है तो हम आप करके देख लो, 49 डिवाइड बाय 40, 14 3 जा 42, यहाँ पे कितना बचा 7, ऐसे आप करके भी कर सकते हो। अब ये 14 कहाँ पे आ जाएगा, ए की पोजीशन पे, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, वो ये आर की वैल्यू लेनी है 7 इंटू देखो 14 है, 7 के टर्म में 7 1 जा 7 7 2 जा 14 हो रहा है, तो डायरेक्ट 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0, इसे आपको पता नहीं चल रहा है तो आप सिंपल लो स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 14 डिवाइड बाय 17 इन टेबल 14 टेबल 7 2 जा सॉरी इन 7 टेबल 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 0, ये हम मिल गया, हमें क्या मिल गया, क्यू मिल गया, और ये मिल गई 0 रिमाइंडर। यहाँ पे 0 आ गया
तो हमारा जीसीडी ऑफ, इसको ऐसे सिंबल में लिखते हैं 175,112 इज, कौन सी वैल्यू लेनी है, बी, जो यहाँ पे बी आ रहा है 7 मिला है हमें। देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे बी की पोजीशन पे जो भी वैल्यू है, यहाँ कौन सी वैल्यू है 7, तो ये हो गया जीसीडी ऑफ 175 एंड 112 इज 7। नेक्स्ट आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया उसके अगले, उसके ऊपर वाले टर्म में जो रिमाइंडर नॉन जीरो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका जीसीडी होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नॉन जीरो, सपोज यहाँ पे 0 है तो उसके ऊपर वाला देखना है। देखो ये सेम ही होगी, ये हो गया जीसीडी ऑफ 175 112 इज 7। फिर अभी दूसरा भी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा पता चलेगा। Second example, 135 and 225। देखो इसका जीसीडी, हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम ले रहे हैं 225। देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, सिलेक्ट द बिग वैल्यू। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बिग है, बड़ी है, 225 बड़ी है, तो 225 उसकी पोजीशन पे लेके एक है। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है जो जीसीडी फाइंड यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम फाइंड करना है हमें। तो इस ये फॉर्मूला आपको रिमाइंड करना होगा एग्जाम में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसको a की पोजीशन पे रख दो, और छोटी वाली है उसको b की पोजीशन पे रख दो। हमें q निकालना है और r। देखो यहाँ पे 225 135, तो 135 इंटू 135 हो गया। देख लो कितना बचता है। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, इसमें 200 करने के लिए कितना चाहिए, 65 चाहिए, और 25, 65 और 25 कितना होता है, 65 और 25। देखो ये 70 और 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 1, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 5 - 5 0, यहाँ पे देखो 2 में से 3 नेगलेक्ट नहीं हो रहा, 10 ले लो, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 2 इंटू 1, 2 को कट करके 1, ऐसे सिंपल हम लो स्टैंडर्ड में करते थे ऐसे इंटू 1, ये 90 बचा। हम लेंगे 135, यहाँ पे 90 कहाँ पे आ जाएगा, बी की पोजीशन पे, 90 इंटू 1 बचा कितना 45, 90 हम ले लेंगे यहाँ पे ए की पोजीशन पे। आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, 90 को कहाँ पे लेना है, ए की पोजीशन पे, और 45 को कहाँ लेना है, बी की पोजीशन पे। ये डिवीजन हो जाएगा, ये 90 डिविडेंड हो जाएगा। 45 देखो 90 45 के टेबल में 45 2 90 हो रहा है डायरेक्ट, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 आ गया तो आप ये स्टॉप कर दो। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको स्टॉप कर देना है। हमारा जीसीडी ऑफ 135 एंड 225 मिल जाएगा। उसको सिंबॉलिकल ऐसा लिखते हैं, 225 एंड 135 इज क्या गया, क्या सिलेक्ट करना है हमें, जीसीडी ऑफ 225 एंड 135। यहाँ पे जो बी 0 वाले टर्म में, जो रिमाइंडर 0 आ गया उस वाले टर्म में यहाँ पे जो बी मिल रहा है, बी मिल रहा है ना 45, तो वो ही हमारा हो जाएगा जीसीडी ऑफ 225 एंड 135। अदरवाइज आपके इसके अगले वाले टर्म में 0 आ गया, उसके अगले वाले टर्म में जो आर बचता है वही होगा। देखो ये सेम ही होगा। अब ये देखो या यही देखो, दोनों में से कोई भी एक चीज आप देख लो तो ये सेम ही हो गए 45। तो जीसीडी ऑफ 225 एंड 135 क्या मिला 45। नाउ हियर जीसीडी निकालना हमने सीख लिया। 2-3 एग्जाम्पल आपको घर पे कर सको ऐसे दे रहा होमवर्क। अगले वीडियो में आपको वो मैं सॉल्व यहाँ पे करवाऊंगा ही,
पर आप घर पे बैठे बैठे ये ट्राई करो कि आपका आंसर मिल रहा है। आपको आंसर भी दे दूंगा, आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। होमवर्क के एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल 660 एंड 252। ऊपर क्वेश्चन लिखना है फाइंड द जीसीडी बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। एग्जाम में भी ऐसे किया होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, 4 मार्क्स है टोटल वेटेज, तो उसमें से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखा गया होगा कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 660 एंड 252 बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, इसका आंसर आएगा, जीसीडी होगा इसका 12 मिलेगा। एंड एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लो 867 एंड 255, इसका आंसर आएगा 51। ये 2 एग्जाम्पल आपको घर पे करने हैं। अगले वीडियो में 2 हम सॉल्व भी करेंगे। आप देखना है, वापस रिपीट आपको दिखाता हूँ रिपीट करके मेथड। क्या करना है, आपको इस दोनों में से बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, उसको किसकी पोजीशन पे रखना है, उसको हमें ए की पोजीशन डिविडेंड की पोजीशन पे रखना है, और छोटी वाली वैल्यू को किसकी पोजीशन पे रखना है, बी की पोजीशन पे। बी क्या, डिवीजर है, डिवीजर को मिल गया, आपको निकालना है क्यू और आर। आप 135 के टेबल में देख सकते हो कि वो 225 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो 1 और रिमाइंडर जो बचेगी सिंपल डिवीजन करके, और रिमाइंडर को वापस अगले स्टेप में ये 135 को हम किसके पोजीशन पे ले जाएंगे, ए की पोजीशन पे, डिविडेंड की पोजीशन। डिवीजर को डिविडेंड की पोजीशन पे ले जाना है, रिमाइंडर को डिवीजर की पोजीशन पे ले जाना है। यानी कि बी को ए के पोजीशन पे और आर को बी के पोजीशन पे ले जाना है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रखो कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 मिल जाता है तब तक। रिमाइंडर 0 मिल गया तो आपका जीसीडी मिल गया। जीसीडी बोले तो ये बी की वैल्यू देखो, ये वाले स्टेप में, 0 वाले स्टेप में, ये अदरवाइज इसके अगले वाले स्टेप में ये जो यहाँ पे आर मिला है वो ही आपका जीसीडी होगा। थैंक यू।